Standing lotus section, girls, please sit down. Daffodil section, children sit down. Lotus section, sit down. Bete, you have done square root of numbers by factorization method. Have you done it? Raise your hand. By factorization method, हमने पहले भी एक दो क्वेश्चंस किए थे. factorization method से आपने स्क्वायर रूट निकालना सीखा हुआ है, नंबर्स के पेयर्स बना के. There is one more method of finding square root, that is long division method. ठीक है, आपके जो क्वेश्चंस हैं, you can apply any method which you want, okay? बट अगर आपको प्रेफरेबली बोला गया है किसी क्वेश्चन में कि प्लीज डू दिस क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन, देन यू कैनॉट अप्लाई दैट फैक्टराइजेशन मेथड. तो आपको लॉन्ग डिवीजन से ही करना पड़ेगा. सो बेटर यू अंडरस्टैंड बोथ द मेथड्स. ओके, लोटस सेक्शन चिल्ड्रन, प्लीज सेटल डाउन फास्ट, क्विकली टेक योर प्लेसेस. Daffodil also. In other section, children have already started. Sunflower is sitting so nicely. Lotus has also adjusted well. Very good. Daffodil, I'm waiting for you. Good. In your module 2, raise your hand. Do you have module with you? MCQ, we are going to start. Good. First question is square root of. First question, MCQ. Question number 1, the number is 53361. We have to find the square root of this. Raise your hand who know the factorization method of finding the square root. जिनको पता है कि factorization method कैसे निकालते हैं. Please start doing. We will be doing this question by both the methods. Okay, although this is MCQ, but you should know both the methods. We will be doing by prime factorization also. We have to find the square root of this. This is a symbol of this. Prime factorization. Okay. Let us do this method first. 5, 3, 3, 6, 1. Start doing. Very good. I want to give you clue. जिन्होंने अभी तक शुरू नहीं किया है. You know this is not an even number. तो इसलिए 2 से तो जाएगा नहीं. Let us try by 3. तो उसके लिए क्या करोगे? डिविजिबिलिटी टेस्ट अपना देखो कि क्या वो 3 से जाएगा. Let us check the divisibility test in rough. 5 plus 3 plus 3 plus 6 plus 1. It is equal to 18. इनका एडिशन जो है वो 18 आ रहा है. ठीक है, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3. क्या 18 3 से डिविजिबल है? रेज योर हैंड. 18 is divisible by 3. Yes. इसका मतलब ये 3 से जाएगा. You have to start by 3. आपकी टेस्टिंग हो गई है. ओके, रफ कॉलम में यू हैव चेक्ड कि ये जो नंबर है, ये छोटी क्लासेस में आपने जो सीखा था डिविजिबिलिटी रूल्स, उससे हमें पता चल गया कि इट विल गो बाय 3. सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग 3. ठीक है, अगर 3 से भी नहीं जाएगा तो नेक्स्ट फिर हम ऑड नंबर देखेंगे, मे बी 7 और समथिंग. ठीक है, इन क्वेश्चंस में डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करो. कीप डूइंग योरसेल्फ, अपने आप करो और बोर्ड से चेक करो. ओके, वेरी गुड. इट विल बी गुड रिवीजन फॉर यू, गुड प्रैक्टिस फॉर यू. चेक करते रहो बोर्ड से. टेबल सबको आते हैं? डू इट योरसेल्फ, मैच फ्रॉम द बोर्ड. डू इट योरसेल्फ. रफ कॉलम यूज करो क्योंकि बड़ा नंबर है ये.
कॉपी मत करो, डोंट कॉपी माइन, डू इट बाय योरसेल्फ because you know it. Method is known to you. Who have found, raise your hand, who have found themselves 231. Very good, very good. Continue. Very good. Prime factorization method you have understood very well क्योंकि ये method आपने छोटी क्लासेस में भी सीखा था कि prime factorization कैसे निकाली जाती है. Right? So this is the way to do. Whenever we find the square root, हम उनके pairs बनाते हैं. जो pair वाले नंबर होते हैं, we write them once. 3 दो बार आ रहे हैं, हमने एक बार लिखा. 7 दो बार आ रहे हैं, हमने एक बार लिखा. 11 दो बार आ रहे हैं, हमने उसको एक बार लिखा. We multiplied all and we got 231 as the square root of this number. ठीक है, this is prime factorization method. Have you done long division also in class? Square root of finding square root by long division. Raise your hand. Have you learned it? Then you listen to me carefully. हाँ जी, lotus section से बच्चे. हाँ जी, you want to say me anything? मैम किया नहीं. Pardon? लॉन्ग डिवीजन. मैम लॉन्ग डिवीजन की हुई है. Okay, very good बेटा. चलो, we will be doing the same question by long division also. नहीं की है. It's okay. It's okay बेटा. Yes ma'am. हाँ जी. बुक में मेंशन नहीं है मैम लॉन्ग डिवीजन. Okay, okay. Then we need not do. Shall we skip it? Long division नहीं करें मैम? Okay, ठीक है. Thank you ma'am. Then we are not doing long division. Let us do by this. ठीक है, prime factorization से ही करो इसको. So, second question. Second question in okay, आपका MCQ इसमें क्या कौन सी ऑप्शंस आ रही है? प्लीज मार्क इट. क्वेश्चन नंबर 1 की आपकी ऑप्शन आ रही है. ऑप्शन ए, दैट इज 231. ठीक है, मार्क कर लो. सेकेंड क्वेश्चन, इट इज अ वेरी बिग नंबर with decimal. Okay, let us write it down. It is 73469.1867004. This is very long number. We took this number so that ये लॉन्ग डिवीजन के लिए हमने ये क्वेश्चन डाला हुआ था ताकि आपको लॉन्ग डिवीजन समझ आ जाए. ठीक है, तो ओके, वी विल नॉट बी डूइंग दैट मेथड. यू मस्ट नो इट कि पहले तो हम इसको ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उनका हम डेसिमल रिमूव करते हैं. ओके, and we'll be writing 1 2 3 4 5 6. We are putting 6 0 at the bottom. Denominator में हम 6 zeros लिख रहे हैं. ठीक है, तो जब इस पूरे का आप स्क्वायर रूट निकालोगे, इट विल बी अ वेरी बिग नंबर क्योंकि आप जो प्राइम फैक्टराइजेशन से जो क्वेश्चंस करते हो, इट विल बी गोइंग वेरी वेरी लॉन्ग. ठीक है, इसका आंसर अभी लिख लो, बट विल बी डूइंग इट लेटर. बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है ये, हमने लॉन्ग डिवीजन के लिए आपके लिए लिखा था ये क्वेश्चन कि लेकिन आपने ये मेथड नहीं किया है. We can skip it and it is the answer is 271. ये आपकी जो ऑप्शन आ रही है ना, ये वाली ऑप्शंस आ रही है आपकी बी ऑप्शन. मार्क कर लो. पहले हम छोटे वाले क्वेश्चंस करते हैं, फिर ये क्वेश्चन भी करेंगे. बिकॉज आई वांटेड टू डू लॉन्ग डिवीजन लेकिन आपने नहीं किया हुआ है. लेट अस डू अ डेसिमल क्वेश्चन. लेट अस डू एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऑफ डेसिमल बाय प्राइम फैक्टराइजेशन ओनली. ओके, write down extra question in your notebook which is a decimal question. मैंने क्यों ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिए? सो दैट आपको डेसिमल की समझ आ जाए कि हम हाउ वी ट्रीट इट. ओके, राइट डाउन. फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ, दिस इज अ डेसिमल नंबर 0.1764. राइट, this is decimal number. Again we are changing it into fraction. How many zeros will come? 1 2 3 4. 1 2 3 4. ठीक है, तो अब इसको आपने जो ऊपर वाला नंबर है, नीचे वाले का तो स्क्वायर रूट आपको पता ही है. इट विल बी लाइक दिस 1764 डिवाइडेड बाय, अगर आपके पास 4 zeros है, इवन नंबर ऑफ जीरोस है किसी स्क्वायर रूट में, तो उसका स्क्वायर रूट क्या बनेगा?
हमने ये की पॉइंट्स में भी लिखा था, इफ देयर आर इवन नंबर ऑफ जीरोस, उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, उसकी जीरो जो है वो हाफ हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 है तो 100 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, अगर आपके पास 4 जीरोस है, 1 2 3 4, तो आपके पास कितना हो जाएगा, 100। डू यू नो इट कि जितनी भी जीरोस हमारे पास इवन नंबर ऑफ जीरोस होती है, उनका स्क्वायर रूट जो होता है उसका आधा हो जाता है, तो इट विल बी 100। नीचे वाला स्क्वायर रूट हमने हटा दिया है टू मेक द क्वेश्चन सिंपल। ओके, नाउ लेट अस डू दिस वन। 1764 को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है। प्लीज स्टार्ट डूइंग ओल्ड मेथड जो अभी अभी किया है आपने। डिनोमिनेटर की प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दी है, वी हैव टू सॉल्व नाउ ओनली न्यूमिनेटर। ठीक है, स्टार्ट डूइंग 1764। दिस इज इवन नंबर, ऑफ कोर्स आप 2 से स्टार्ट करोगे, डोंट थिंक मच, you always start with the smallest number. Very good, started. रफ कॉलम में करते जाओ अपने आप, डोंट कॉपी माइन, बोर्ड से देख के मत करो क्योंकि आपको आता है। दिस इज एन ऑड नंबर, ऑड नंबर कुड गो बाय 3। गेस, मेरे को थोड़ा सा गेसिंग हो रही है कि 3 से जा सकता है, तो उसको डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक कर लो। 4 + 4 8, 8 + 1 9, 9 3 से जाता है, तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 से जाएगा। ओके, दिस यू कैन डू मेंटली। Who are doing themselves, raise your hand. जो कॉपी नहीं कर रहे हैं बोर्ड से, वेरी गुड वेरी गुड, यू आर टेस्टिंग योरसेल्फ, वंडरफुल। 147 is coming again, this is an odd number, डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाओ। 8 + 4 12, 12 goes in 3's table, तो ये भी पूरा नंबर 3 से जाएगा। ओके, मेंटली यू हैव टू थिंक ऑफ। 49, very simple number, we know 49 goes by 7, 7 7s are, बहुत अच्छा आपको आंसर आ रहा है। ठीक है, सॉरी, I think the question, this, sorry, I have to do it once more. This is 1764 divided by 100. I'm doing it once more because there was issue of light. 882, then 2 से आप 3 से किया, फिर से आपने अब तक आपने कर लिया होगा। I want to ask you, what is the answer? What is coming? I want to ask you. Sunflower section, Parmeet Singh. Parmeet, have you done? Parmeet is there? सनफ्लावर में परमीत कोई नहीं है? ओके, प्रतीक सिंह, वेरी गुड, आजू बेटा, आजू बेटे, कर लिया आपने, स्क्वायर रूट निकाला इसका? हैव यू कंप्लीटेड बेटा? Okay, you are doing it. Okay, continue then. Let me also do. Everybody continue and check from the board. Okay, there was some issue of light. It was all gone. 441. You are doing by 3, then you are getting 147. And then again by 3 you are doing, because this is a number which is going by. Then by 7 you are doing, और 7 से आपके पास 1 आ रहा है। अब इसको मैच कर लो जरा, किन किन का ये करेक्ट है। प्लीज मेक द पेयर्स इमीडिएटली द मोमेंट यू फिनिश इट। किन का आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है, वेरी गुड।
वेरी गुड. प्लीज राइट डाउन 2 into 3 into 7. जब आप इसे यहाँ पे स्क्वायर रूट का साइन डालते हो तो सामने एक एक बार नंबर को लिखना है. ओके क्योंकि स्क्वायर रूट में उनके पेयर जो है वो उनका सिंगल सिंगल नंबर जो है हम लिखेंगे. दिस इज कमिंग आउट टू बी 42. राइट लेकिन हमारे पास क्या था? इट वॉज स्क्वायर रूट ऑफ 176264 sorry by 100. So it is 42 by 100. So it is 0.42. This is the final answer. दिस इज टू बी टेकन केयर. बेटा यहाँ पे जो स्टार लगा लो, ये स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. काफी बच्चे क्या करते हैं व्हेन दे आर स्टार्टिंग द क्वेश्चन, ठीक है, दे गॉट लॉस्ट इन फाइंडिंग द फैक्टराइजेशन. उनका पूरा जो एनर्जी है सारी उन्होंने यहाँ पे लगा दी कि कहाँ पे पेयर है क्या है. तो 42 को फाइनल आंसर लिख के यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं. दे स्टॉप टिल हियर. उनको लगता है कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, सारी फैक्टराइजेशन निकाल ली, सारे फैक्टर्स यहाँ पे भी ठीक है, कैलकुलेशन भी ठीक है, 42 इज द फाइनल आंसर. प्लीज रिमेंबर अभी ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है. अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें से आपको यहाँ तक 2 मार्क्स मिलेंगे और ये जो स्टेप है ये वाला करने के आपको 1 मार्क और मिलेगा. प्लीज रिमेंबर यू हैव टू फिनिश ऑल द स्टेप्स. This is a common mistake done by good children also. Okay, till here it is not complete. You have to do one more step, divide by 100, write the answer in decimal. और वैसे भी आपको पता है बेटा जब डेसिमल का क्वेश्चन है तो ऑफ कोर्स आंसर भी डेसिमल में ही आएगा. आपको थोड़ा सा क्लू भी होना चाहिए, मेंटली पता होना चाहिए कि अभी क्वेश्चन आपका खत्म नहीं हुआ है. ओके थर्ड क्वेश्चन बेटा. सो दिस वाज आई टुक इट एज एक्स्ट्रा क्वेश्चन. लेट अस डू थर्ड क्वेश्चन. Third question, a yoga instructor, seen the module? Yoga instructor wants to arrange maximum possible number of 6,000 students in a ground. There are 6,000 students. They want to arrange them in a ground. जब मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, please in the module you also read it. So that the number of rows is same as number of columns. It means when number of rows is equal to number of columns, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? क्या शेप आएगी उसकी? Columns are 1, 2, 3. Rows are 1, 2, 3. तो क्या शेप आएगी? If number of rows is equal to number of columns, what would be the shape of the figure? Will it be a square? क्या वो स्क्वायर शेप बनेगी? नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है तो हाथ खड़े करो. स्क्वायर शेप बनेगी ऑफ कोर्स. ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने 6,000 स्टूडेंट्स को एक स्क्वायर की फॉर्म में खड़ा करना है. हाउ मेनी रोज विल बी देयर? दे आर आस्किंग रोज, नंबर ऑफ रोज दे आर आस्किंग. तो ऑफ कोर्स नंबर ऑफ रोज तो कॉलम के इक्वल ही होगा. If 71 students were left out after the arrangement, 71 students were extra students जो कि हमारे इस बॉक्स के अंदर फिट नहीं हुए. राइट आई एम एक्सप्लेनिंग वंस मोर इन द समरी फॉर्म. 6,000 स्टूडेंट्स को, टोटल स्टूडेंट्स को हमने एक स्क्वायर की फॉर्म में अरेंज करना है. ठीक है उनमें से जब हमने उनको स्क्वायर की फॉर्म में अरेंज किया तो 71 स्टूडेंट्स को साइड पे खड़ा करना पड़ा क्योंकि उनको दे वर नॉट कमिंग इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर. कुछ और शेप बन रही थी उनको खड़ा करने से. राइट तो दे आर आस्किंग कि रोज कितनी बनेगी, हाउ मेनी रोज आर देयर. तो सबसे पहला आपका काम क्या है कि 6,000 में से तो सबसे पहले 71 को निकाल दो. क्यों? क्योंकि हमें ये पता चल गया कि जो 6,000 स्टूडेंट्स थे वो एक स्क्वायर नहीं फॉर्म कर पाएंगे. पहले इसको 71 को माइनस करो. ठीक है देन वी विल सी हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर. लेट अस स्टार्ट इट. ठीक है एवरीबडी रफ कॉलम आपके पास है. इफ यू वांट टू ड्रॉ दिस you can draw, you can write all extra things.
सो दैट बाद में जब आप अकेले बैठ के पढ़ोगे आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं होगी. यू आर डूइंग इट बाय फुल अंडरस्टैंडिंग. You are subtracting 71 students from here so that you come to know that 5929 students are forming a square. ठीक है. Now they are asking, लिख लो यहाँ पे, it implies 5929 students are forming a square. स्क्वायर बना रहे हैं तो इसका मतलब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है. इट इंप्लाइज रोज इज इक्वल टू कॉलम. अपनी अंडरस्टैंडिंग, यू आर राइटिंग योर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. क्योंकि स्टेटमेंट क्वेश्चंस में मैंने काफी देखे स्टूडेंट्स को लगता है कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, समझ नहीं आ रहा क्या करें. तो दिस इज ऑल, जब जो हमने अभी तक लिखे ये सारी आपकी अंडरस्टैंडिंग है. ठीक है. अभी हमने क्या करना है, 5929 को हमने उसमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. 5929, लेट अस स्टार्ट इट. यू आर लकी टू गेट इट ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन. आपसे जो प्रीवियस स्टूडेंट्स थे उन्होंने तो लॉन्ग डिवीजन से क्वेश्चंस किए थे विच वाज डिफिकल्ट मेथड. You are lucky that you are doing by prime factorization every question. Okay, start doing everyone. Rough column में अपने आप सोचो कि 5929 कहाँ से start होगा, which table you are thinking of in the beginning. Very good, try it. Will see, by 2 it cannot go because this is odd number. By 3 let us test it. Divisibility test लगाओ, क्या ये 3 से जाएगा? What is their addition? Addition कितना आ रहा है इनका? 5 plus 9 plus 2 plus 9 कितना आ रहा है? 25 आ रहा है. ठीक है. सो ये पता चल रहा है कि 3 के टेबल से तो जाएगा नहीं, 5 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है कि पीछे 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए. लेट अस टेक नेक्स्ट ऑड नंबर. 5 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा है? 7. ट्राई करो 7 से. हु आर गेटिंग बाय 7? कईयों ने कर भी लिया होगा. रेज योर हैंड हु हैव डन बाय ऑलरेडी बाय 7. 7 से कर लिया जिन्होंने ऑलरेडी. ओके, वेरी गुड. सनफ्लावर बेटी फर्स्ट चाइल्ड प्लीज आ जाओ. टेल मी व्हाट इज कमिंग बाय 7. मिडिल रो. हाँ जी बेटी, आपने हाथ खड़ा किया था, जल्दी से बता दो क्या आ रहा है. 5929 क्या ये 7 से जा रहा है? यस, 7 से जा रहा है ये. किस किसने रफ कॉलम में ट्राई किया है इसको? अगर नहीं कर रहे हो तो प्लीज डू इट बेटा. ओके, वेरी गुड. अभी मेरे को हाथ दिख रहे हैं. वेरी गुड. हु आर रेजिंग देयर हैंड, दे आर पुटिंग एफर्ट सिंसियरली. वेरी गुड. इसको करो बेटा आगे. बहुत अच्छे अच्छे नंबर आ रहे हैं. 121 यू हैव सीन मेनी टाइम्स, यू हैव सीन कि 121 आपका हर एक क्वेश्चन में जनरली आ रहा है. एंड 129 इज स्क्वायर ऑफ 11. सबको याद होना चाहिए. अब तो बहुत बार आपने यूज कर लिया. 121 इज कमिंग इन एवरी क्वेश्चन, यू नो. 11 into 11 is 21. 121, यू नो इट. बहुत बार यूज कर लिया आपने. ठीक है, बहुत अच्छे पेयर्स बन रहे हैं इसके. तो आपके पास आ रहा है यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 5929 इज इक्वल टू 7 into 11 इज इक्वल टू 77. अभी हम क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिटेल में कर रहे हैं बिकॉज यू आर डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम विद मी. ओके, जब एक्सपर्ट हो जाओगे थोड़ा सा फास्ट करेंगे. अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि जब यहाँ पे स्क्वायर रूट का साइन लगाते हो, ये नंबर जो है पेयर वाले नंबर जो है उनको एक ही बार लिखना है, 2 बार नहीं लिखना. ओके, प्लीज रिमेंबर. इज इट फाइन? ठीक है बेटा. एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन?
सो हाउ मेनी रोज विल बी देयर? रोज कितनी बनेगी और कॉलम कितने बनेंगे? लोटस सेक्शन चिल्ड्रन, छोड़ दो उसको, नोटबुक को छोड़ दो. प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन द क्वेश्चन. डेफोडिल सेक्शन, रंजोत सिंह. Ranjot Singh, please come. The child, daffodil section, child who is talking a lot near the wall. This is second bench or third bench. Boy, please come. आके मेरे को बताओ कि कितनी, क्या आ जाओ बेटे. Tell me how many rows are coming in this question. You have not done it, means, है ना? Ranjot Singh from daffodil section. Betty, have you done it? Tell me how many rows are coming. 7. Why you are answering? Let him give the answer. Wait, who told you 7? किसी से अपने सुना है अभी अभी 7? और आप बता रहे हो. Use your own brain. Everything is done here in front of you. Read from the board. How many rows are there? 7. 7 कहाँ पे है पूरे क्वेश्चन में? मेरे को बताओ 7 कहाँ पे लिखा हुआ है? Okay, बैठो. You are not concentrating. It means sit down. Daffodil section. One more boy I want to call. Sahib Jot Singh. Daffodil. जल्दी से आ जाओ. Tell me what should be the final answer? 77. 77. Who are getting 77? Who say number of rows are 77? Very good. Please sit down. Thank you, beta. See, beta, ये MCQ questions हैं, लेकिन MCQ questions जो है, they are not different from subjective question. I'm telling you. ये जो पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, ये ऐसे क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स में भी बनते हैं. प्लीज रिमेंबर. ठीक है, तो इसमें आपकी ऑप्शन जो है सी आ रही है. 77 इज द करेक्ट आंसर. 77. दिस इज वेरी मीनिंगफुल क्वेश्चन. ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट क्वेश्चन के आपकी काफी क्वेश्चन जो है इस आपकी बुक में होंगे. फोर्थ क्वेश्चन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. द स्मॉलेस्ट नंबर, smallest square number which is divisible by each of the numbers 6, 9 and 15. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 4. 6, 9 and 15. You know, 3 numbers हैं आपके पास. We have to find the smallest square number which is divisible by each of the numbers 6, 9 and 15. सबसे पहले यहाँ पे लिखो नोट. नोट लिखो जो आपके क्वेश्चंस में काम आएगा. Any number which is divisible by 6, 9 and 15, उसको क्या बोलते हैं? आपने पढ़ा हुआ है, ये 7th में पढ़ा हुआ है, 6th में पढ़ा हुआ है कि कोई भी नंबर जो इन नंबर से डिविजिबल होगा उसको क्या बोला जाता है? मल्टीपल या फिर फैक्टर? बस मुझे ये बता दो. डिविजिबल बाय दिस इज मल्टीपल या फिर फैक्टर? सोच के बताओ मेरे को. उसको हम टिक मार्क करेंगे. एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय, हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो 6 से भी डिविजिबल हो, जिसको 6 भी डिवाइड करे, 9 भी डिवाइड करे और 15 भी डिवाइड करे. ठीक है, 6 भी डिवाइड कर सके, 9 भी डिवाइड कर सके और 15 भी डिवाइड कर सके, और नीचे हमारे पास रिमाइंडर आए 0 सबके केस में. ठीक है, हम अगर कोई कहते हैं कि डिविजिबल है, इसका मतलब है रिमाइंडर 0 आएगा सबके केस में. तो उसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल बोलते हैं या फिर फैक्टर बोलते हैं?
हाथ खड़े करो जिनको लगता है मल्टीपल बोलते हैं। मल्टीपल, वंडरफुल, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के, दैट इज मल्टीपल। ठीक है, इसको टिक मार्क कर लो, ये हमारे हुआ मल्टीपल। तो हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि 6 और 9 और 15 से डिविजिबल हो। ओके, नाउ मल्टीपल। मल्टीपल कितने होती है? 6 के मल्टीपल कितने होंगे मुझे ये बताओ। हाउ मेनी मल्टीपल्स आर देयर ऑफ 6? इनफाइनाइट। ठीक है, 9 के कितने मल्टीपल्स होंगे? इनफाइनाइट। 15 के कितने मल्टीपल होंगे? इनफाइनाइट। तो इसका मतलब मल्टीपल, सारे मल्टीपल्स निकालना तो पॉसिबल नहीं है, इनफाइनाइट मल्टीपल्स होते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट मल्टीपल किसको बोलते हैं? स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या बोलते हैं उसको? क्या नेम होता है उसका? फर्स्ट पॉइंट ये लिख लो, सेकंड पॉइंट ये लिखो। ये छोटी छोटी बातें आपके बहुत काम आने वाली हैं। ठीक है, अभी आपकी 8th क्लास स्टार्ट हुई है। यू विल बी यूजिंग दीज ऑल नंबर्स अगेन एंड अगेन। एलसीएम आपने सीखा हुआ है, फैक्टराइजेशन सीखी हुई है, अब आप उनको यूज कर रहे हो क्वेश्चंस में। टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ स्मॉल कॉमन मल्टीपल। ओके, अभी नहीं पता चल रहा तो यहां पे लिखो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको? ये तो सुना होगा आपने। व्हाट डू वी कॉल इट? इज इट एलसीएम? क्या उसको एलसीएम बोलते हैं? हाथ खड़ी कर दो जल्दी से। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलसीएम? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वेरी गुड। कईयों को जिनको डाउट हो रहा है यहाँ पे लिख लो, इसलिए मैंने ये नोट लिखवाया है। 10th क्लास में भी बच्चों को बहुत डाउट होता है कि ये क्या नाम लिखा हुआ है इतना बड़ा, आई डोंट नो। ठीक है, ये एब्रीविएशन तो देखी होती है उन्होंने, बड़ा बड़ा एलसीएम तो देखा हुआ है, लेकिन ये नहीं पता कि इसको ये भी बोलते हैं ये भी बोलते हैं, फुल फॉर्म उनको नहीं पता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने एलसीएम निकालना है इन तीनों का। ठीक है, ये दोनों आपने नोट लिख लिया। अभी क्वेश्चन पे आ जाओ, जल्दी से क्वेश्चन खत्म करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, आफ्टर दिस वी विल क्लोज इट। ठीक है, ये नोट लिख लिया सबने? हाथ खड़े करो, दोनों नोट्स लिख लिए? वेरी गुड, यू विल बी यूजिंग इट। ओके, चलो अभी क्वेश्चन का आंसर करो। फाइंड आउट एलसीएम ऑफ 6, 9 एंड 15। जल्दी से निकाल दो, ये तो पता ही है आपको एलसीएम कैसे निकालते हैं। स्टार्ट डूइंग। 6 में सीखा था आपने, अपने आप करो, बोर्ड से चेक करो। वेरी गुड, आई कैन सी हैंड। लोटस सेक्शन बच्चे, यस फर्स्ट गर्ल, प्लीज टेल मी व्हाट इज एलसीएम। मिडिल रो, जस्ट वेरी गुड, आ जाओ। 90, वंडरफुल, एलसीएम आ रहा है 90, उसने निकाल लिया हुआ है। और किसने निकाला है? हाथ खड़े करो जल्दी से। वेरी गुड बेटा, सिट डाउन। वेरी गुड, वेरी गुड। आई एम नॉट सॉल्विंग इट, ये आपने छोटी क्लासेस में सीखा हुआ है एलसीएम कैसे निकालते हैं। इट इज कमिंग आउट टू बी 90। लेकिन क्वेश्चन हमारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बिकॉज दे आस्क्ड स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। अभी ये स्क्वायर नंबर नहीं है, लिखो यहाँ पे 90 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर। ये तो स्क्वायर नंबर नहीं है, हमें तो स्क्वायर नंबर चाहिए था। ठीक है, तो अभी 90 से नेक्स्ट कैसे लें? उसके लिए हमें 90 का फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। फिर हम देखेंगे कि हमें कौन सा नंबर और चाहिए, 90 से हम किसको मल्टीप्लाई करें ताकि वो एक स्क्वायर नंबर बन जाए। ठीक है, शुरू करो इसको। छोटे छोटे नंबर शुरू करो। ये बहुत छोटा सा 90 तो बहुत छोटा सा नंबर है। ये आपकी फैक्टराइजेशन बन रही है 90 की। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन से हमें ये पता चल गया कि हमें एक्स्ट्रा नंबर चाहिए। 90 इज इक्वल टू, हमारे पास आ रहा है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए यहाँ पे?
किसके पेयर चाहिए हमें? 2 का भी पेयर चाहिए, 5 का भी पेयर चाहिए। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, 90 इंटू 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 900। ये हमारे पास फाइनल आंसर है, जो कि स्क्वायर भी है और स्मॉलेस्ट भी है। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज ट्राई सच क्वेश्चंस एट होम ऑल्सो। मॉड्यूल में आगे भी क्वेश्चंस आएंगे ऐसे, जब नेक्स्ट टाइम करेंगे। ठीक है, एनी डाउट है बेटा? जो अभी किया है हमने, किसी को कोई स्टेप पूछना है? मे बी क्लास में आपने बहुत फाइन फाइन स्टेप्स लिखे होंगे। फाइन मतलब कि हाँ, पहले इसको करना है, फिर इसको करना है, फिर इसको करना है। ठीक है, बट उसको रट्टा नहीं लगाना, अंडरस्टैंडिंग करो कि हमें पहले तो मल्टीपल चाहिए, फिर हमें स्मॉलेस्ट चाहिए, और साथ में हमें स्क्वायर भी चाहिए। बहुत सारी चीजें चाहिए इसमें। मल्टीपल हमने यहां से निकाल लिया। ठीक है, स्मॉलेस्ट मल्टीपल हमारे पास ये आ गया, लेकिन ये स्क्वायर नंबर नहीं है। स्क्वायर नंबर बनाने के लिए हमने इसकी फैक्टराइजेशन से हमें ढूंढ लिया कि किससे मल्टीप्लाई करें ताकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो हमें जो है नंबर क्या आएगा हमारे पास, 900 इज सच अ नंबर, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, जो कि डिविजिबल है 6, 9 और 15 से। अगर इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, प्लीज स्टैंड एंड आस्क। डोंट फॉरगेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप बुक में भी आपने ऐसे क्वेश्चन किए होंगे। नेक्स्ट टाइम विल बी डूइंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, आई विल बी आस्किंग यू। ओके, प्लीज रिवाइज एट होम। चलो, सी यू नेक्स्ट टाइम बेटे, बाय बाय।